LKG تا جماعت ششم داخلے جاری ہیں. سنوبر اردو اسکول، عرفہ گارڈن روڈ، نزد مسجد ابراہیمیہ، دھنگر گلی، عادل آباد. مزید تفصیلات کے لیے رابطہ قائم کیجیے 8788447722. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. صدق اللہ العظیم. ہر نفس غمزدہ ماہ رمضان چلا، ماہ رمضان چلا، ماہ رمضان چلا. تیری آمد سے مسرور تھا ہر چمن، پھول کلیاں تھی خوش خوش تھا نیلا گگن. روزداروں کے لب چومتی تھی ہوا، سب سے کر کے وفا ماہ رمضان چلا. برکتوں کے لٹا کر خزانے سبھی، رحمتوں کے لٹا کر خزانے سبھی. جتنا مانگا تھا مسرور نے ماسا، دے کے رمضان چلا، ماہ رمضان چلا. تجھ کو پایا مگر قدر تیری نہ کی. الحمدللہ اپنے رمضان کے موقع پر یہاں بہترین حدیث بنا کر ہم بیچتے ہیں شالیمار ہوٹل سے. آپ سے بھی آتے ہیں پاٹا کوڑا، چوڑا، اپنا نور، بوری، بیلا. یہ اتنا پورا آپ کو سیٹ اپ کرنے کے لیے کتنے لوگ لگتے ہیں جملہ؟ ابھی تو ہمارے پاس 12 جنے، 12 ممبر لگتے ہیں. صبح 4 جنے رہتے، شام میں 8 جنے آتے، پورے 12 جنے. اندازہ کتنے پلیٹ روزانہ حریص جاتی ہوگی؟ پلیٹ کا اندازہ نہیں، الحمدللہ بہت جاتا ہے. یہاں کم سے کم 60 سے 70 کلو حریص جاتا ہے ہمارے پاس. ہاتھ ملتے ہیں افسوس سے ہم سبھی، سرنگوں ہیں ہوئی ہم سے سرزد قطع، پھر بھی دے کر دعا ماہ رمضان چلا. تو جو آیا تھا گھر میں تھی کیسی بہار، رحمتوں سے تھا موسم بڑا خوشگوار. یاد کرتا رہوں گا تجھے جلد آ، منتظر ہوں تیرا ماہ رمضان چلا. بے بسوں بے سکون اور مجبور کو، تنگ دستوں کو محتاج رنجور کو، ہدیہ فطرہ زکوٰۃ اور صدقات کا دے کے روتا ہوا ماہ رمضان چلا. رمضان کے سلسلے میں ابھی جو گرائک چل رہی ہے کافی اچھی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ کی طرح ہے. اگر اپن اس کو بہت زیادہ آگے نہیں سمجھتے تو نیچے بھی نہیں، ہمیشہ جس طریقے سے رہتا ہے اس پوزیشن میں الحمدللہ جاری ہے. جیسے اسپیشلی جو اس وقت مارکیٹ میں ٹرینڈس ہیں گرلس میں، لیڈیز میں، اس میں نائرا کٹ، شرارہ، غرارہ اور لانگ فراک گاؤن سے لے کر اس میں نیو ماڈلز وغیرہ، اور اسپیشلی نائرا کٹ اس وقت سیزن کا سب سے ہائی لائٹ آئٹم ہے کہ کسٹمرس آتے ہیں اور وہیں سے شروعات کرتے ہیں. اور جینٹس میں بھی اسی طریقے سے ایک شفلی آئٹمس رہتا ہے جو کرتے پیجامے کے لیے انٹروڈیوس کیا گیا. یہ جو چیز آپ بتائیں یہ صرف ایک مائنڈ سیٹ ہے کسٹمر کا. علاقہ اوورال پسماندہ ہے مگر اس کا ہر آدمی اور ہر شاپ پر ایسا پسماندہ نہیں ہے. یہ ایک میجورٹی ٹرینڈ کو دیکھ کر ایک چیز کہی جاتی ہے، اور جو ہے بہت سی چیزوں میں، ایجوکیشن سیکٹر میں اور بہت سے ریسورسز کے لیے. مگر جہاں تک یہ چیز ہے، میں صرف اپنی دکان کی نہیں، مارکیٹ میں اور بھی شاپس ہیں جس میں ہر وہ چیز جہاں مینوفیکچر ہوتی ہے وہاں سے ڈائریکٹ آتی ہے. دیکھیے عادل آباد کے لحاظ سے جب ہم بات کریں گے تو یہاں پہ مین ٹائم لیڈیز کے لیے 11 سے لے کر تراویح تک 8:30-9 بجے تک کا ٹائم لیڈیز کا لیے رہتا ہے. اب عام دنوں میں جو دکان بند ہونا ہے 9 سے 10 بجے کے درمیان میں ہو رہی ہے. ابھی رمضان کے وقت میں آپ کی دکان کب سے چلے گی؟
देखिए रमज़ान में हम कस्टमर्स को डील कर रहे हैं 9:30 से 10 तक, उसके बाद में हमको शॉप को रीसेट करना है, उसके लिए हमको और 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। रात में 2 बजे भी दुकान खुली रखूँगा, आम दिनों में तो 2 बजे कस्टमर आएंगे, तो 2 बजे कस्टमर आएंगे तो मैं 2 बजे दुकान खुली रखूँगा। मैं इस फार्मूले पे नहीं चलता, हर चीज़ के लिए एक डेली शेड्यूल है, अपनी लाइफ है, फैमिली है। रमज़ान में असल चीज़ तो इबादत है, बिजनेस तो रमज़ान का जस्ट एक पार्ट है ईद की तैयारी का। अगर हम उस इबादत के लिए टाइम नहीं निकाल सके तो ये बिजनेस किस काम का और ये रमज़ान की असल खदरदानी क्या है। तो इसलिए हम सिस्टमेटिक चलें, परचेजिंग, शॉपिंग, सेलिंग और बिजनेस के लिए एक टाइम शेड्यूल रहे, उससे एक्सीड ना करें, आगे ना बढ़ें, और इबादत के लिए जो असल टाइम है वो उसके लिए करें। रमज़ान की असल रौनक अल्लाह से ताल्लुक़ और इबादत में है, इसको हम एक पार्ट की हैसियत से रखें, थोड़ा सा टाइम दें, जो हम चाहते हैं उतनी तैयारी करें और ज़्यादा वक्त अपनी आखिरत बनाने के लिए लगाएं। तेरी आमद से सहरा गुलिस्ता हुए, गुल इबादत के महवे रक़्सा हुए। खुश्क चेहरों को हम क्या बताएं कि क्या नूर करके आता माह रमज़ान चला। कह के गुस्ता जहाँ की है दिल से दुआ, लौट आ लौट आ लौट आ लौट आ। क्या हुई है क़ता हमसे कुछ तो बता, रूठ कर क्यों भला माह रमज़ान चला। हर नफ्स गमज़दा माह रमज़ान चला, माह रमज़ान चला, माह रमज़ान चला। ज़कात इंसान अदा करता है ताकि अल्लाह का हुक्म पूरा हो जाए। ज़कात क्यों है? इसलिए कि अल्लाह ताला का फ़रीज़ा है, वाक़िमुस्सलात वातुज़्ज़का, कि अल्लाह ताला ने पहले नमाज को ज़िक्र फरमाया और साथ ही साथ ज़कात का हुक्म दिया। जैसे इंसान अपने बदन की ज़कात निकालता है, इसी तरह से इंसान को अपने माल की ज़कात का हुक्म दिया गया ताकि उस माल को पाक किया जाए। जब इंसान का माल पाक होता है तो उससे खैर बरकतें आती हैं और ज़कात से माल कम नहीं होता। ज़कात की 2 किस्में हैं, एक है अदाए ज़कात और दूसरा है उजूब ज़कात। ज़कात का अदा करना तो साल के मुकम्मिल होने पर होता है, लेकिन उजूब ज़कात साहिब निसाब बनते ही हो जाता है। अगर कोई आदमी साहिब निसाब बन गया, जैसे अभी रमज़ान चल रहा, आज ही उसके पास माल आ गया, अगर वो ज़कात निकालना चाहता है, साल नहीं गुजरा, तो इसको पेशगी ज़कात कहते हैं। तो पेशगी ज़कात देना शरीयत में जायज़ है। अगर कोई आदमी साल के गुजरने से पहले ज़कात निकालता है तो इसको अदाए ज़कात कहा जाएगा, उजूब ज़कात नहीं कहा जाएगा, लेकिन उसके ऊपर वाजिब हो जाता है मालदार बनते साथ ही। तो मालूम ये हुआ कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि साल का गुजरना चाहिए तब ज़कात दी जाएगी, ऐसे नहीं है, बल्कि वाजिब अदा होने के नतीजे अगर निकालता है तो उसके लिए सवाब है। तो जाहिर सी बात है, रमज़ान में एक का अल्लाह ताला 70 गुना सवाब अता फरमाते हैं, तो इसी तरह ज़कात देना दुरुस्त। जो बयान किया गया वातिल माल अला हुब्बी ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन के ज़रिए से, तो सबसे पहले करीबी रिश्तेदार को बयान किया। इसकी बात हर एक के सामने आया होना चाहिए और उसकी वजाहत होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि करीबी रिश्तेदार को देने में दुगना सवाब है। एक तो एक रिश्तेदारी का है और दूसरा है कि इसके ज़रिए से अल्लाह का फरीज़ा पूरे तौर पर अदा हो जाता है और सवाब भी उसको हासिल होता है। हर नफ्स गमज़दा माह रमज़ान चला, माह रमज़ान चला, माह रमज़ान चला। तेरी आमद से मसरूर था हर चमन, फूल कलियाँ थी खुश खुश था नीला गगन। रोज़दारों के लब चूमती थी हवा, सबसे करके वफा माह रमज़ान चला। पेशेंट्स के लिए तो रोज़ा रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इवन कुरान मजीद ने भी यही कहा कि उनके लिए ख़ास तौर पर छूट है। हाँ, उन सारे पेशेंट्स में से ख़ास तौर पर वो पेशेंट्स जो डायबिटीज़ के हैं, उनके लिए रोज़ा रहना हकीकत में मुनासिब है। मेडिकल साइंस भी ये बताता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स रोज़ा रहने से, ख़ास तौर पर लंबा अरसा 15 से 20 दिन या फिर 1 महीना रोज़ा रहने से उनकी डायबिटीज़ इम्प्रूव हो जाती है। अगर मैं मेडिकल लैंग्वेज में बात करूँ तो बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, यानी बॉडी का जो ब्लड शुगर होता है उसको कम करने को लेकर नेचुरली बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है और वो प्रोड्यूस होने वाला जो सिस्टम और जो मैकेनिज्म होता है वो वापस रीसेट हो जाता है। और इसीलिए ओवरऑल डायबिटीज़ के लिए ख़ास तौर पर रोज़ा रहना काफ़ी फ़ायदेमंद है। अभी वो ख़ास तौर पर हार्ट के अमराज के दवाई वगैरह ले रहे हैं, उनके लिए भी रोज़ा रहना असल में मुफीद साबित हुआ है।
मेडिकल साइंस में तो ये बताया गया कि खास तौर पर हार्ट के एलिमेंट सारे के सारे अमराज काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं इसमें। उसमें ख़ास तौर पर उसकी वजह ये है कि रोज़ा रहने से बैड कोलेस्ट्रॉल नाम का जो कोलेस्ट्रॉल है वो घट जाता है, और जब बैड कोलेस्ट्रॉल घट जाएगा तो फिर 70% जो दिल के अमराज होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो इस हैसियत में वो लोग जो दिल की बीमारियों में मुलविस है लेकिन उनका वक्त पुराना वाला मामला है तो वो रोज़ा रह सकते हैं। अगर वो रीसेंट कोई मसाइल में मुब्तला है तो वो रोज़ा ना ही रहे तो बेहतर होगा। मेडिकल साइंस से भी साबित है कि रोज़ा रहने से कई फ़ायदे हैं। एक तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को डायबिटीज़ कंट्रोल होना, उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाना, और फिर हार्ट के पेशेंट्स में खास तौर पर कोलेस्ट्रॉल कम हो जाना। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बॉडी में जो भी टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन पूरा 1 महीने के अरसे में हो जाता है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। कॉग्निटिव साइंस करने वाले डॉक्टर्स ये कहते हैं, खासतौर पर न्यूरोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ब्रेन फंक्शन काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है रोज़े की हालत में। खासतौर पर रोज़े का जो दूसरा हिस्सा होता है वहाँ पर शायद इंसान थोड़ा बहुत कमज़ोर फील हो, लेकिन ओवरऑल पूरे महीने में उसका फोकस, उसका कॉन्सेंट्रेशन और एक पेशेंट का, एक फ़र्द का ख़ास तौर पर मेमोरी वगैरह भी इम्प्रूव हो जाता है। ये फ़ायदे भी हम बहुत हद तक देखने को मिलते हैं। बरकतों के लुटा कर खजाने सभी, रहमतों के लुटा कर खजाने सभी, जितना मांगा था मसरूर ने मासवा, देके रमज़ा चला माह रमज़ा चला, तुझको पाया मगर कदर तेरी न की, हाथ मलते हैं अफ़सोस से हम सभी, सरनगो हैं हुई हमसे सरजद क़ता, फिर भी दे कर दुआ माह रमज़ा चला। ये अल्हम्दुलिल्लाह आदिलाबाद स्कूल एरिया है। अभी आदिलाबाद पुलिस बहुत अच्छा काम करी, जैसा कि रामनवमी था, हनुमान जयंती था, बहुत अच्छा लेके चले, और एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को और आदिलाबाद पुलिस को और प्रेस को, सब लोगों को जो है सो बहुत अमन और शांति से। साहब हमारा तेलंगाना और बहुत अच्छी सेकुलर जहन रखने वाले आदिलाबाद में लोग हैं, और बहुत प्यारे और खूबसूरत एक गुलदस्ते की तरह जो बोलते हैं वो आदिलाबाद में ही दिखाई देंगे आप। तू जो आया था घर में थी कैसी बहार, रहमतों से था मौसम बड़ा खुशगवार, याद करता रहूँगा तुझे जल्द आ, मुंतज़िर हूँ तेरा माह रमज़ा चला, बेबसों बेसुकों और मजबूर को, तंग दस्तों को मोहताज रंजूर को, हदिया फित्रा ज़कात और सदक़ात का, दे के रोता हुआ माह रमज़ा चला, तेरी आमद से सहरा गुलिस्ता हुए, गुल इबादत के महवे रक़्सा हुए, खुश्क चेहरों को हम क्या बताएं कि क्या नूर करके आता माह रमज़ा चला, कहके गुस्ता जहाँ की है दिल से दुआ, लौट आ लौट आ लौट आ लौट आ, क्या हुई है क़ता हमसे कुछ तो बता, रूठ कर क्यों भला माह रमज़ा चला, हर नफ्स गमज़दा माह रमज़ा चला, माह रमज़ा चला, माह रमज़ा चला। बस ये रमज़ान की रौनक है, वही रमज़ान में ऐसा ही माहौल रहता है। आदिलाबाद में तरावी से फारिग होकर आके लोग चाय का नज़्म कुछ भी रहा तो यहाँ पर टिफ़िन गिफ़िन कुछ भी, लोग यहाँ पर थोड़ी देर रुक कर बात कर लेके घरों को लौट जाते हैं सहरी के लिए। माशाल्लाह रमज़ान में तो हर साल ओल्ड बस स्टैंड पे ही इतनी रौनकें रहती है। मैं तो कम से कम यहाँ 10-15 साल से देख रहा हूँ रौनक है। हम लोग तरावी जामा मस्जिद में पढ़कर फिर यहाँ आते हैं तो तकरीबन लोग, कई महल्ले के लोग, पूरे लोग यहाँ पर जमा होते हैं। तरावी ख़त्म होने के बाद कोई चाय पीने आता है, कोई हरीस खाने आता है, कोई पान खाने आता है। माशाल्लाह कई दिनों से यहाँ पर तरावी जब से रमज़ान जब से स्टार्ट हुआ है, जब से रमज़ान की रौनकें सिर्फ ओल्ड बस स्टैंड पे आ रही है नज़र। माशाल्लाह
हर रमज़ान में जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है, लोग अपनी इबादतों से फारिग होकर यहाँ पर एक फ्री माहौल के टाइप में, यहाँ पर क्या है, गंगा जमुना तहजीब भी है और यहाँ पर हर मज़हब के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन खुशहाली रमज़ान जैसी सादत मुबारक का महीना भी है और तरावी और अपनी इबादतों को पूरा करने के बाद यहाँ पर तफरीह के मौके पर हरीस और चाय वगैरह पान वगैरह खाने को आते हैं। हर नफ्स गमज़दा माह रमज़ान चला, माह रमज़ान चला, माह रमज़ान चला, तेरी आमद से मसरूर था हर चमन, फूल कलियाँ थी खुश खुश था नीला गगन, रोज़दारों के लब चूमती थी हवा, सबसे करके वफा माह रमज़ान चला, बरकतों के लुटा कर खजाने सभी, रहमतों के लुटा कर खजाने सभी, जितना मांगा था मसरूर ने मासवा, देके रमज़ान चला, माह रमज़ान चला, तुझको पाया मगर कदर तेरी न की, हाथ मलते हैं अफ़सोस से हम सभी, सरनगो है हुई हमसे सरजद क़ता, फिर भी दे कर दुआ माह रमज़ान चला, तू जो आया था घर में थी कैसी बहार, रहमतों से था मौसम बड़ा खुशगवार, याद करता रहूँगा तुझे जल्द आ, मुंतज़िर हूँ तेरा माह रमज़ान चला, बेबसों बेसुकों और मजबूर को, तंग दस्तों को मोहताज रंजूर को, हदिया फित्रा ज़कात और सदक़ात का, दे के रोता हुआ माह रमज़ान चला, तेरी आमद से सहरा गुलिस्तां हुए, गुल इबादत के महवे रक़्सा हुए, खुश्क चेहरों को हम क्या बताएं कि क्या नूर करके आता माह रमज़ान चला, कहके गुस्ता जहाँ की है दिल से दुआ, लौट आ लौट आ लौट आ लौट आ, क्या हुई है क़ता हमसे कुछ तो बता, रूठ कर क्यों भला माह रमज़ान चला, हर नफ्स गमज़दा माह रमज़ान चला, माह रमज़ान चला, माह रमज़ान चला। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना बरकत वाला महीना है, अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान मुबारक महीने में अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कारोबार है अच्छा है। अभी तो हालात मार्केट ऐसा है कि आने वाले भी 2-4 दिन में 20 रमज़ान तक ज़रा शुरुआत होंगी कारोबार से, ज़रा पब्लिक को भी ज़रा भी क्या है धूप की वजह से आने की प्रॉब्लम है, ज़रा क्या है बोलो तो अभी कारोबार उतना नहीं है, 2-4 दिनों में इंशाल्लाह चालू होगा। रमज़ान का अल्हम्दुलिल्लाह बरकत वाला महीना है, कारोबार में कुछ कमी नहीं होगी, कारोबार अल्लाह के फजल करम से अच्छा चलेगा। और लॉकडाउन की वजह से तो काफ़ी फ़र्क पड़ा व्यापारों के ऊपर, और धूप की वजह से पब्लिक अभी आ तो नहीं रही है, व्यापार तो पूरा ठंडा है, व्यापार में कुछ भी फ़र्क नहीं है, जो रोज़ मजदूरी निकल रही है वो चल रही है अभी। और अब समझो अब रमज़ान को अब 10-12 दिन है, अगर अल्लाह चाहे तो अगर चल गया व्यापार तो बहुत अच्छी बात है, वैसा तो व्यापार नहीं है अभी फ़िलहाल। इसमें क्या है 200-400-500 रुपये बचे तो बच जाते, व्यापार के ऊपर डिपेंड है, व्यापार अच्छा हुआ तो 500-600 रुपये बच जाते, अगर व्यापार नहीं चला तो फिर थोड़ा इधर उधर दूसरी मेहनत वगैरह करना पड़ता। पहली तारीख से 15 तारीख तक थोड़ा चलता, 15 तारीख के बाद में डाउन हो जाता व्यापार। हमारी सरकार है तेलंगाना की, अगर हमारे को यहीं पे रहने दिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं यहाँ पर रहना तो ये डिवाइडर जो बने हैं, ये डिवाइडर तोड़ के यहाँ पर अगर 10x10 का ठेला बना के अगर देते होंगे तो हमारी ज़िंदगी यहाँ पे अच्छी गुजर बसर हो जाती। हमको कहीं और मुख्तलिफ जगह पे अगर रखेंगे कहाँ पे तो व्यापार चलने वाला नहीं है, मार्केट में चलने वाला व्यापार है। गांव की जो खेड़े की पब्लिक जो आती है वो अम्बेडकर चौक से, गांधी चौक, देवी चंद चौक
ऐसा गुजर होके निकलती। अब हमको इधर उधर डाल देंगे तो पब्लिक तो आने वाला कोई है ही नहीं। ऑटो वाले का अगर किराया बोलेंगे तो 50 रुपये 100 रुपये ऑटो वाला बोलता, वहाँ तक कोई लाके छोड़ने वाला नहीं है। उससे तो हमारी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएंगी। एक आदमी के पीछे 5-6 जनों की जिम्मेदारी है। गरीब गुरबा कहाँ जाएंगे सर? अगर गरीब गुरबा को आप यहाँ से निकाल के फेंक देंगे तो उसको फांसी लगाने के सिवा दूसरा चारा नहीं है। जैसा आज किसान फांसी लगा ले रहे, वैसा हमको भी लगा लेना पड़ेगा। इतना हमारी अज़लन गुजारिश ये है कि यहाँ पर ही अगर ये डिवाइडर तोड़ के अगर किसी को 4x5 का बोलो या 10x10 का अगर ठेला अगर बना के देते होंगे तो बना के दीजिए। इंडिया समय पर मजीद दिलचस्प प्रोग्राम्स देखने के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज @इंडिया समय 17 और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया समय को।